Yes. Yes, you can start asking your doubts. So when they say highest paramagnetism and two have the same number of unpaired electrons, then how do you compare? Same number of unpaired electrons. Okay. Example किधर है बताओ? Was the ligand different? Oh, so all ligands were the same. Hmm. So I don't remember the question, but there were two options which had the same number of unpaired electrons. Did you consider the CFT splitting over there? सारे लिगेंड सेम है मतलब सेम ही CFT अप्लाई करना पड़ेगा. T2G concept you applied over there? Were they the carbonyl complexes? No, they were I think water. Aqua. तो उसमें तो splitting मतलब pairing नहीं होगा and electrons were to be entered as T2G and EG. So if you entered in the like d orbital as it is, तो unpaired electron मिल जाना चाहिए बराबर. The thing is, did you consider a CFT over there? No, Were they octahedral or tetrahedral? they were octahedral. Octahedral, ना? The T2G and EG. I don't think दो options match होने चाहिए. Because paramagnetism is a factor which is just dependent on number of unpaired electron and normally it doesn't depend on any other factor. And if the ligands are same तो फिर कोई chance ही नहीं है कि कोई एक option हो सकता है correct. या तो फिर उस क्वेश्चन में दो आंसर करेक्ट होंगे या तो फिर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है. ओके. Yes, sir. यस. Can you name the ligand PY? PY indicates an abbreviation for pyridine. It's an aromatic compound with 6-membered ring having a heteroatom nitrogen. And the lone pair over here was localized. So because of this, it can act as a Lewis base and it does act as a monodentate ligand. PY is pyridine and it's a monodentate ligand where the lone pair was localized on nitrogen atom. It was not involved in resonance. The moment the lone pair gets involved in resonance, its availability becomes less. जैसे इसी के सामने, if there was an example of 5-membered ring with nitrogen having the lone pair, तो इसको हमने pyrrole बोला था. And because the lone pair is delocalized, its donation or the availability would be lesser. That's why pyrrole can't act as a ligand. It's a weak Lewis base. Fine. और okay, module 1 में कुछ important MCQs I'll just take up. Section D से शुरू करते हैं. C तक we had completed last time. D4. D4. The most stable complex among the following is, all are the nickel complexes. In first one, the ligand is chlorido, second aqua and chlorido, third is amine, and fourth is cyano. How can you determine the stability? Strength of ligand.
strength of the ligand, and the strongest field ligand out of the options is CN. CN. So the answer is fourth. So stability of the complex depends on the charge of the metal. तो यहाँ पर देखोगे तो सब में निकल के ऊपर +2 सेम चार्ज था. Then the strength of the ligand, which is as per the spectrochemical series. Then the concept of chelation, and then we can compare it with the EAN. ठीक है. Also CFT के splitting के बाद जो T2G का half filled और EG का half filled configuration है, even that would have a stability. So like in transition metals, if you remember, we had said that chromium ka 3+ is a very stable ion, because यहाँ पर जब chromium aqua यानी aqueous solution में hydrated complex बनाता है, तो chromium with a +3 charge have the 3 electrons entered in the T2G orbital as a single electron. So here we say it has a T2G half-filled stable configuration. वैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन में तो स्टेबिलिटी आती ही है, और उसके अलावा द नेक्स्ट स्टेबिलिटी विल बी ऑब्टेन फॉर D8. मतलब ध्यान रखना कि जो D का स्टेबिलिटी है वो सिर्फ 5 और 10 में नहीं होता है. फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस when there is splitting of the d orbital, the D3, D5, D8 and D10 all are stable. Stability for octahedral complexes. Clear है? Understood. Yes, sir. Yes, sir. Then D9. The geometry and magnetic moment of the complex NiCl4 2 negative and PdCl4 2 negative are. क्या फंडा था यहाँ पर? Heavy metal. HTM, heavy transition metals. तो इनके पास बिगर d ऑर्बिटल्स होते हैं, इसीलिए ये हायर एनर्जी स्ट्रक्चर को ज्यादा प्रिफर कर सकते हैं. लेकिन लोअर या लाइट ट्रांजिशन मेटल्स के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. इसलिए NiCl4 have a sp3 tetrahedral, but palladium, platinum, rhodium, gold, silver, these heavy transition metals with a coordination number 4 always will show dsp2 square planar complexes, irrespective of whether the ligand is strong filled or weak filled ligand. Ligand ka strength does not matter when it is HTM. Clear है ना? Yes, sir. So now with the sp3, what will be the magnetic moment for NiCl4 2 negative? √8. Because यहाँ पर nickel +2 will have 3d 8. 8, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा. So with 8 electrons, it will be having 2 unpaired electron, and the Bose magnetic moment would be 2 point something, 2√2, that is 2.83. And for palladium, जब भी स्क्वायर प्लेनार होगा तो इसी फैमिली में है, मतलब यहाँ पर ये 4d8 का कॉन्फ़िगरेशन बताएगा, और 4d8 के कॉन्फ़िगरेशन में सारे पैर अप हो जाएंगे, बिकॉज लिगेंड कोई भी हो यहाँ पर मैटर नहीं करता है, पैरिंग तो होगा ही. तो 8 इलेक्ट्रॉन पैर अप होने की वजह से बोस मैग्नेट्रॉन वुड बी इक्वल टू 0. अंडरस्टूड? Yes, sir. Next, D13. In which of the following complex in the metal ion will T2G6 and EG0 configuration be according to CFT? T2G में 6. 3. 3. Because first case में fluoride is a weak field ligand,
तो इलेक्ट्रॉन वहां पेयरिंग नहीं करेगा। सेकंड में साइनो स्ट्रॉन्ग फील्ड है लेकिन Fe इज इन द +3 +3, so it will have 3d 5 5. 5 एंड नेक्स्ट में Fe +2 में है will have 3d 6 और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे T2G में, तो it will have a configuration T2G में 6 Eg में 0 and that's why the correct answer will be 3. Here with this. Yes sir. Next, E11. How many isomers are possible for the complex ion given? Now, if I generalize this complex ion, tell me what would be the general format of this? Ma3B2C. There are 3 different ligands जिसमें repeated है 3, फिर 2 और फिर 1, मतलब A3, B2 and C, N plus minus. अब इसके लिए कितने आइसोमर्स पॉसिबल है उसका ट्रिक क्या है? हाउ विल यू स्टार्ट विद द कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफिकेशन? Right AA, transpairs. Right transpairs. Perfect. So what would be the first transpair? AA BB AC. Keeping the similar ligands to be together, AA, BB and AC. Next, Keep AA constant. इसको फिक्स कर दिया, तो what will be the combination? ABBC. ABBC एक ही आ सकता है क्योंकि अगर ट्रांसपेयर में एक भी सेम होगा तो इंटरचेंज करने में एक ही पॉसिबिलिटी आएगी, बट हैड इट बीन CD and EF then there would be 2 possible combinations. फिर नेक्स्ट बोलो, keeping the reference to be always first one, huh? So if I take now BB fix AA and AC, will it give me any different combination? No. No. Then AC को fixed रखूं, इन दोनों में interchange करूं, AB. so I will get AB. Is there any other combination possible? No. No. अब ये हो गए अपने GI, तो GI तो 3 हो गए। OI के लिए ट्रांसपेयर को देखो, अगर ट्रांसपेयर में सेम लिगेंड्स है तो देयर विल बी नो OI। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में There is a possibility. देयर इज अ पॉसिबिलिटी, है कि नहीं है हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं। अब हम ड्रॉ करेंगे और ट्रांसपेयर को सामने सामने रखेंगे, ए बी एंड AC। क्या बोलोगे? There is a symmetry. देयर इज डेफिनेटली अ सिमेट्री। अगर इस प्लेन को देखोगे तो A का A, B का B सेम, और इसका हाफ और इसका हाफ, इसका हाफ और इसका हाफ सेम है, मतलब यहाँ पर सिमेट्री आ रहा है। तो अगर यहाँ सिमेट्री है So how? मतलब यस, अरे ये प्लेन से काटोगे तो इसका हाफ पार्ट मिलेगा ना, ए का इमेज ए में, बी का इमेज बी में, आधा है उस तरफ, आधा है इस तरफ, So नॉट which विद रिस्पेक्ट plane टू are we स्क्वायर cutting प्लेन, along? ये बिटवीन दिस। So then A image will come on C ना? नहीं, ये वाला प्लेन कैसे बताओ अभी? फ्रंट से मतलब आपके सामने से प्लेन काटो, दिस वन, ये पूरा प्लेन कंसिडर करो ना। Yes, so that I understood. हम्म, But then the A and C which are on axial position right now, they won't overlap ना? तो उसके लिए तो यू कैन से दैट ए का हाफ इमेज इस तरफ है, हाफ इमेज उस तरफ है, मतलब कंसिडर ए एज अ स्फीयर, हाफ ऑफ ए विल बी हियर, हाफ ऑफ ए विल बी देयर, इसमें सिमेट्री आ जाएगा ना। ये वाले प्लेन से अगर काटोगे तो A इज मैचिंग विथ A, B इज मैचिंग विथ B, एंड इसको जब आप प्लेन से काटोगे तो यू विल हैव द स्फीयर स्प्लिटेड इनटू 2 हाफ स्फीयर्स। अच्छा, oh from the front. या ये वाला प्लेन अभी विजुअलाइजेशन करना, मतलब दिस वन,
Okay, okay, I got it. ये लाइन के अलोंग प्लेन खड़ा कर दो फ्रॉम योर फेस, जैसा आप देख रहे हो फ्रॉम द फ्रंट। Yes, I got it. समझा? इसीलिए जब ट्रांस पेयर में डिफरेंट लिगेंड्स हो तो पहले अरेंज करो एंड देन ओनली कमेंट वेदर द ओआई विल बी पॉसिबल और नॉट। ठीक है, तो इसके लिए तो रूल्ड आउट है, इसके लिए रूल्ड आउट है, बट जब इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा तो आपको अरेंज करना है। इनफैक्ट जब नॉर्मली 3 लिगेंड्स डिफरेंट होंगे ना, एटलीस्ट 3, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखोगे तो ए और ए के साथ बी एंड सी है, तो इस केसेस में जनरली ओआई होगा ही नहीं। जैसे हमने A3 B3 में भी देखा था कि आपके कॉम्बिनेशन में थियोरेटिकली पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली वहां पर एक ऐसा प्लेन आ जाता है जहां पर यू विल हैव अ सिमेट्री पॉसिबल। So OI will be nothing over here and the total number of isomers will be equal to 3. So in समझा? every different compound there is a different plane of symmetry which is taken. एक तो ट्रांसपेयर वाला है, ठीक है, Yes, sir. दूसरा आपको इस तरह से एक प्लेन खड़ा करके देखना है जहां पर आप देखोगे सिमेट्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अलग प्लेन नहीं है, मतलब यहाँ पर आपको इस तरह से प्लेन कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू कंसिडर दिस एज अ स्क्वायर प्लेनार देन आप बोलोगे ए एंड सी में दे आर डिफरेंट। तो मैंने Yeah. ये वाला प्लेन कंसिडर नहीं किया। ये वाले प्लेन के लिए तो सिंपल शॉर्टकट बोला है क्या, कि अगर ट्रांसपेयर में सेम लिगेंड्स हैं मतलब सिमेट्री है ही, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। बट जब ट्रांसपेयर में लिगेंड्स डिफरेंट होंगे देन यू हैव टू कंसिडर द अरेंजमेंट एंड देन लुक एट द सिमेट्री वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। जैसे A3 B3 में भी किया था ना हमने फैकमर में। Yeah. आर यू गेटिंग इट? Yeah. बस वैसा ही यहाँ पर प्लेन मैंने कंसिडर किया है। अंडरस्टूड? Okay, sir. Yeah. So finally, for this complex, the number of isomers possible total will be 3 and there will be no OI. तो GI पूछा तो भी 3 होगा, OI पूछा 0 and total will be 3. Clear है? Yes, sir. अब E12 देखो. Which of the following ions are optically active? What can you comment on the first one? It's symmetrical. Because it's a which isomer? This है कि trans है? It's a trans isomer, right? और अगर आप इसको जनरलाइज करो तो M A ट्वाइस और A2 बोल सकता हूँ। Yes, sir. तो जब A ट्वाइस में अगर आपने बाइडेंटेड को आमने सामने रखा तो इट विल ऑलवेज हैव अ सिमेट्री ड्यू टू विच OI यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं होगा। इस केस में सिर्फ सिस आइसोमर OI दिखाता है, ट्रांस नहीं दिखाता है। ठीक है, तो सिस में आई कैन अरेंज द बाइडेंटेड लिगेंड लाइक दिस, और बाकी दोनों को कैसे भी अरेंज करो सेम लिगेंड्स है तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा सिस आइसोमर है जिसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, विल हैव डेक्स्ट्रो एंड डीवो पॉसिबल। तो फर्स्ट विल नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, सेकंड Active. ऑप्टिकली एक्टिव, सेकंड मतलब यही है ना सिस वाला अरेंजमेंट। थर्ड में क्या है, व्हाट इज द जनरल टाइप? MAA thrice. A thrice. M डबल ए थ्राइस, और M डबल ए थ्राइस में तो GI होता है. Not possible. होता ही नहीं GI, है। OI is possible. हाँ, ओनली OI इज पॉसिबल। ये कॉम्प्लेक्स में सिर्फ OI पॉसिबल होगा, मतलब इसका अरेंजमेंट्स मैटर नहीं करता है, कैसे भी आप अरेंज करो आपको GI नहीं मिलने वाला है। इसलिए इसके टोटल आइसोमर्स सिर्फ 2 ही थे, एंड ये वाला डेफिनेटली OI बताता है। और फोर्थ वाला फर्स्ट के जैसा ही है, खाली उन्होंने मिरर इमेज दे दिया है। ठीक है, और सिमेट्री की वजह से देयर विल बी नो OI पॉसिबल, सो द आंसर विल बी 2 and 3, दैट इज ऑप्शन 3। अंडरस्टूड? Yes, sir. अब सेक्शन F जो है वो आज मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में, तो उसके रिलेटेड द MCQs यू विल बी एबल टू सॉल्व इट।
Acha, apart from what I have discussed, any doubts in module 1 classwork? So I have a doubt from the practice paper. So how many optical isomers are there in CO, En twice, Cl twice? CO, En twice, Cl twice. and cobalt is +3. Yes. Okay, so I'll generalize it as MAA twice and A2. ये तो यही वाला है ना, MAA twice A2. तो इसका सिस होगा, ट्रांस होगा और सिस में डेक्स्ट्रो लेवो, मतलब देयर विल बी GI equal to 2, OI equal to 2 and total will be equal to 3. So the answers are 3. तो 3 टोटल optical पूछा है कि isomers. क्या पूछा है? Optical isomers. नहीं, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 ही होंगे, इट कांट बी 3. देन दैट Okay. इज करेक्शन. कौन सा क्वेश्चन है? Question 9. 9. ओके, सो प्लीज मेक अ करेक्शन. एक और करेक्शन मैंने भेजा है, दैट वाज रिलेटेड टू DsP2 ऑफ प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स. आई थिंक ये एक और करेक्शन. ठीक So है, OI can never be an odd number, right? एग्जैक्टली. क्योंकि सिस के लिए डेक्स्ट्रो लेवो हमेशा 2 पॉसिबिलिटीज होगी, इट हैज टू बी एन इवन. या तो फिर क्वेश्चन में टोटल आइसोमर्स होना चाहिए, बट अगर ऑप्टिकल दिया है तो आंसर शुड बी 2. So in the solution, it's like trans mesoform is the third one. दैट इज द थर्ड आइसोमर. ट्रांस मीजो मतलब यही है, ये ट्रांस जो है ना, इसको मीजो क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पर जब भी सिमेट्री आता है ना, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है. और ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके सिस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है बट ट्रांस में नहीं होता है, उसको मीजोफॉर्म बोलते हैं. सो दैट इज द थर्ड isomer in total. It's not an OI. ऑप्टिकल पूछा तो 2 ही होगा, 3 नहीं होगा. Okay. अच्छा, एक और चीज, if I have the dextro and levo of this complex mixed in equal proportion, which we call it as equimolar solution, then what will be the net rotation for the solution obtained? I have mixed dextro and levo of this complex in the same proportion, equimolar solution बनाया है, तो नेट रोटेशन क्या होगा PPL का, प्लेन पोलराइज लाइट? 0. बिकॉज डेक्स्ट्रो का डेफिनेशन क्या था? इट रोटेट्स द PPL टू द Right. राइट एंड लेवो रोटेट्स टू द लेफ्ट. और सेम कॉम्प्लेक्स है और सेम कंपाउंड का डेक्स्ट्रो लेवो है, तो अगर ये डेक्स्ट्रो प्लस थीटा से घुमाता है तो ये लेवो माइनस थीटा से घुमाएगा. So when I take the equimolar solution of this, plus theta will balance or neutralize or nullify minus theta, and the solution will have no rotation. That is why iska jo solution hai, that will be optically inactive. Optically inactive. और ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर. रेसमिक मिक्सचर. So if the complex is optically inactive due to a plane of symmetry, it's called a mesoform. If the solution is optically active due to the mixing of dextrolevo, it is called racemic mixture. समझा? Yes or no? Yes, sir. Okay. Sure. Anything else? Yes?
Now we'll continue with the next part. In fact, in the last session, we had completed the discussion of crystal field theory, CFT, applied for octahedral complexes. And in today's session, I'll be discussing the CFT for tetrahedral complexes. CFT हम दो ही complexes के लिए पढ़ रहे हैं. One is octahedral and other is tetrahedral. ठीक है. अब एक बार क्विक रिविजन कर देता हूं ऑफ द octahedral. बहुत सिंपल था. First of all, what I did was I considered the metal of the octahedral complex in the arrangement with respect to the cube. So let's consider the metal ion of the octahedral complex is present at one of the corners. So if I extend these lines, these are my three-dimensional axes for the metal. ठीक है. अब CFT बोलता है कि there is a electrostatic attraction between the metal and the ligand. And जब वो एक दूसरे को अप्रोच करता है, apart from attraction, there is also repulsion. ठीक है. अब repulsion जब होगा तो it will influence the energy, ligand will influence the energy of the d orbitals of metal. अब ये influence किस तरह से करता है, उसके लिए हमने ligands और d orbitals को ऑब्जर्व किया. सो मेटल के दो तरह के ऑर्बिटल्स हैं. वन विच इज प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस एंड वन विच इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस. अलोंग द एक्सिस वाले को क्या बोलते हैं? नाउ यू कैन कॉल इट एज T2G सेट और EG सेट. यू कैन नेम इट, राइट? EG. EG सेट. एंड बिटवीन द एक्सिस वालों को T2G. T2G. अब लिगेंड तो एक्सिस के अलोंग ही अप्रोच कर रहा है, बिकॉज फॉर दिस octahedral the 6 ligands will be present like this. 1 2 3 4 5 and 6. तो यहां से आ रहा है मेरा ligand. ठीक है. So now when the ligand approaches the metal, apart from attraction, there is repulsion. So since it is approaching along the axis, the orbitals which are present along the axis will be influenced more. And that is why they are raised higher in energy as compared to the orbitals between the axis. That is why T2G is at a lower level, EG is at a higher level. हमने इसको एवरेज आउट किया और इस हाइपोथेटिकल सेंटर को क्या बोला? Barry center. Barry center. That's it. ये था अपना CFT for octahedral complex. Now let's see for the tetrahedral complex. So once again, for the tetrahedral, I consider the central metal in the center of the cube. And now the 4 ligands in a tetrahedral arrangement will be oriented at the 4 corners of the cube like this. तो ये मेरा central metal है and these are my 4 ligands which are arranged in the form of a tetrahedral geometry with the angles between these two equal to 109 degree 28 minutes. ठीक है. अब सेम फंडा हमें अप्लाई करना है. ये सबसे पहले मैंने मेटल को 4 लिगेंड्स के थ्रू एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट दे दिया क्यूब में. नाउ इफ आई कंसिडर द मेटल का एक्सिस, इट विल बी passing from the center of the faces of the cube. Yes or no? जो मेटल की 3 डायमेंशनल एक्सिस है वो फेस के सेंटर से पास होगी. ठीक है. और थर्ड एक्सिस जो है दैट विल बी पासिंग थ्रू द बॉडी डायगोनल, यानी दिस कॉर्नर एंड दैट कॉर्नर. अब सेम तरीके से आई वंस अगेन प्लेस द ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल. मेटल के 2 ऑर्बिटल्स है, एक जो अलोंग द एक्सिस होता है और दूसरा जो बिटवीन द एक्सिस होता है. अब आप लिगेंड को ऑब्जर्व करो और मेटल के डी ऑर्बिटल्स को ऑब्जर्व करो. With the arrangement of tetrahedron, which orbitals of D are now influenced more? Between the axis. बस खत्म. देखो once again,
ये वाला मेटल का ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस है और ये बिटवीन द एक्सिस है। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में लिगेंड और मेटल का जब इंटरेक्शन होगा तो लिगेंड d ऑर्बिटल which is placed between the axis उसको ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। So now which will be raised more in energy? T2G. T2G यानी ट्रिपली डीजेनरेट वाले dxy, yz and zx will be influenced more and will be raised more in energy. तो वापस वही डायग्रामेटिक फॉर्म में बता रहा हूं। सबसे पहले the 5d orbitals when the ligand is not present, मतलब when the metal ion is free, bachelor है, तब तक all the d orbitals are at the same energy level called as Degenerate. degenerate, called as degenerate. फिर आया ligand उसकी लाइफ को चेंज करने। So ligand influenced the d orbitals of the free metal ion. And the influence was such that the orbitals were raised to an average energy level, which was hypothetical called as barycenter. With respect to this hypothetical center, we have observed that which is raised more as compared to other? T2G. तो यहाँ पर आएगा ट्रिपली डीजेनरेट T2G और यहाँ पर आएगा डबली डीजेनरेट EG. So the first and important difference in the splitting is the T2G and EG gets reversed in the tetrahedral splitting. Fine. ठीक है, अब कुछ और डिटेल्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। This energy difference between the d orbitals of the metal ion is now represented as delta T. T and T for tetrahedral. And EG now will be lowered by how much amount with respect to delta T? minus 0.6. मैंने क्या बोला था? This 2 orbitals will be lowered with respect to this 3 orbitals का energy. यानी जितना ये रेज हुआ उतना ये लोअर होगा, इसीलिए यहाँ पर इसको हमने बोला था 3/5। तो ये 0.6 डेल्टा T से लोअर होगा and this will be raised by 2 out of 5, that is 0.4 delta T. Clear? Yes, sir. So with respect to barycenter, in the tetrahedral, T2G is raised more than the EG. The difference in the energy is delta T and EG is lowered by minus 0.6 delta T and T2G is raised by 0.4 delta T with respect to the hypothetical center. Okay, that's it. This is the crystal field splitting in the tetrahedral complexes. अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट ध्यान देना. If I have tetrahedral versus octahedral complexes, there is a difference in the number of ligands which are present. Tetrahedral में there are 4 ligands which we represent as Ml4 and octahedral में 6 ligands हैं which I can represent as Ml6. Now ये जो एनर्जी का इन्फ्लुएंस है वो कौन कर रहा है? Ligands. So can I say more the number of ligands present, more will be the influence over the orbitals of metal? Yes. जितने ज्यादा ligands होंगे उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, राइट? इसका मतलब जो डेल्टा टी स्प्लिटिंग का बना और जो डेल्टा ओ ऑक्टाहेड्रल का था, which will be higher in terms of energy? Delta O. Undoubtedly डेल्टा ओ. ठीक है, और एक चीज, डेल्टा ओ में 6 लिगेंड्स की वजह से जो स्प्लिटिंग हो रहा था वो लिगेंड के ऊपर डिपेंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर डेल्टा टी के केस में वो लिगेंड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है.
चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, द पेयरिंग विल नेवर एवर हैपन। अब ऐसा क्यों होता है, प्लीज पे अटेंशन। इट इज ऑब्जर्व दैट डेल्टा टी जो स्प्लिटिंग है इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ, और 4/9 इज अप्रॉक्स 45%। मतलब अगर कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डेल्टा ओ 100 यूनिट एनर्जी का होता है, तो डेल्टा टी उसके सामने सिर्फ 44 यूनिट्स। 44.44, मतलब अप्रॉक्स 45 बोल रहा हूं, चलेगा, 45 यूनिट्स का होगा अप्रॉक्स। मतलब यहाँ पर डेल्टा टी का जो स्प्लिटिंग है दैट इज वेरी स्मॉल, मतलब लेस देन 50% ऑफ व्हाट वी हैव इन डेल्टा नॉट। तो डेल्टा नॉट बहुत ज्यादा होगा तो हम बोलते हैं कि पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। लेकिन टेट्राहेड्रल में डेल्टा टी एज इट इज वेरी स्मॉल, मतलब ये जो जंप करने का एनर्जी है ना, ये बहुत छोटा रहता है। इसीलिए लिगेंड जब आएगा तो इफ आई हैव 4 लिगेंड्स इट विल एंटर एज 1 2, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर कभी नहीं जाएगा, इट विल ऑलवेज एंटर इन द higher energy, 3 4 5, then 6 7 8 9 10. That is how the electron will enter in tetrahedral complexes. Understood? Yes, sir. Yes, sir. And this is the diagram which is given in the NCERT. d orbitals free ion ka d generate hoga, then average energy in the spherical crystal field will be raised to a hypothetical center called Berry center. अब डायग्राम में भी लिख लो चलेगा। और इसके रिस्पेक्ट से the 3 orbitals T2G are raised by 2/5 delta T and the EG is lowered by -3/5 delta T. And just make a note over there, चाहिए तो डायग्राम के अंदर ही लिख लो, for, write down, for tetrahedral complex because of small delta T, electron pairing never occurs. तो यहाँ पर लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो वीक हो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है इट हैज टू बी एंटर्स एज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, द पेयरिंग विल नेवर अकर। समझा? Yes, sir. Yes, sir. So that's it. That completes the CFT part for the tetrahedral complexes. The main point was T2G and EG level are reversed and the pairing doesn't occur for the tetrahedral complex because the tetrahedral splitting is just about 4/9 times of delta O, indicating that the splitting is so very small that the pairing doesn't occur in the tetrahedral complexes. That's it. We come to the next part, color in coordination compounds. Now in T block elements, we have observed that transition metal ions have color. What was the condition for the presence of color in them? Unpaired d electron. The unpaired d electron. और अगर unpaired d electron होगा तो color का reason क्या है? Unpaired तो है ही definitely. DD transition. DD transition. अब वो DD transition CFT explain कर पाएगा ना? Yes, sir. DD transition मतलब the electron का jumping within the d orbitals. तो ये जो ions है, जो colors हमने discuss किए थे, इनफैक्ट what I have given as the shortcut trick, उसमें aqueous solution में जो ions है उनका color हमने discuss किया था। तो क्रोमियम का 3+ जो है in the presence of the water यानी aqueous, it exists in the form of a aqua complex like CrH2O6 3+। और अब उसमें क्या होता है, T2G और EG का स्प्लिटिंग होता है
ये 3 इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी पे रहते हैं, and because of unpaired the dd transition is possible, and that is why this particular chromium 3 plus in the aqueous solution is colored. Okay, so now let's look at the points. The color of the complex is always complementary to that which is absorbed. This is already understood and known. Yes, sir. Color will always be complementary to what is being absorbed. और complementary color find करने के लिए मैंने एक simple triangle rule दिया था. Make a triangle, eye को बीच में रखो and just arrange the Vibgyor in clockwise. मतलब अगर कोई complex violet light को absorb करता है तो it will appear yellow. और अगर कोई कॉम्प्लेक्स रेड कलर्ड है इसका मतलब उसने एब्जॉर्ब किया होगा ग्रीन कलर. ठीक है, दैट्स कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट. सो द कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज द कलर जनरेटेड फ्रॉम द वेवलेंथ लेफ्ट ओवर. इफ ग्रीन लाइट इज एब्जॉर्ब्ड इट अपीयर्स रेड, एंड टेबल गिव्स द रिलेशनशिप ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड एंड द कलर ऑब्जर्व्ड. जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है और जो कलर ऑब्जर्व होता है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होता है. ठीक है, जैसे कोबाल्ट का पेंटाएमाइन क्लोरिडो कॉम्प्लेक्स कलर एब्जॉर्ब किया येलो, लेकिन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्व हुआ वायलेट. वैसे ही ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा रेड दिखेगा, ब्लू एब्जॉर्ब करेगा इट विल बी येलो ऑरेंज, ब्लू तो ऑरेंज दिखेगा. ठीक है, और अगर कोई अल्ट्रा वायलेट में होगा तो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी विजिबल इन द विद द नेकेड आई. सो कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड अल्ट्रा वायलेट में, लेकिन कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है वो जो रेडिएशंस को रिलीज करता है that lies in the visible range, and that is why this complex appears to be pale yellow. ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं ध्यान देना. तो आई हैव एन एग्जांपल ऑफ अ टिटेनियम का हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स. ठीक, जो कलर हम Ti3+ का बोलते हैं वो Ti3+ aqueous होता है, जो एक्चुअली हाइड्रेटेड एक्वा कॉम्प्लेक्स की तरह एग्जिस्ट करता है. अंडरस्टूड? यस सर. इसीलिए जब एक्वा की जगह कोई और लिगेंड मैं कंसिडर कर लूं, जैसे क्लोरो डाल दूं यहां पर या एमाइन डाल दूं, विल द कलर बी रिटेन्ड? नो, बिकॉज लिगेंड CFT का जो ट्रांजिशन स्प्लिटिंग है, सॉरी CFT का जो स्प्लिटिंग है उसको इन्फ्लुएंस करता है ना. तो एमाइन होगा तो द डेल्टा नॉट वुड बी मच हायर, एक्वा है तो डेल्टा नॉट छोटा होगा. तो अगर आपका स्प्लिटिंग कम है तो एनर्जी कम होगा, एनर्जी कम होगा तो अ लाइट ऑफ विच वेवलेंथ विल बी एब्जॉर्ब्ड, लोअर या हायर? लोअर. लोअर. नहीं, एनर्जी कम होगा, सॉरी एनर्जी कम होगा, कम बोला ना मैंने. हाउ इज एनर्जी एंड वेवलेंथ रिलेटेड? इनवर्स. सो इफ द डेल्टा नॉट स्प्लिटिंग इज लोअर तो उसको जंप Wavelength करने is के लिए higher. हायर वेवलेंथ की लाइट लेनी पड़ेगी, राइट? समझा? अब मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि there are different ligands L1, L2 and L3. 3 different ligands हैं जो violet light, blue light और red light absorb करता है. The ligands related with the complexes absorbs violet, blue and red. So based on this data given, they have asked what is the order of strength of the ligands. Strength of ligands, will you be able to identify? L3 is weak. L3 will be a weak field ligand and L1 will be a strong field ligand. How? Red has a large wavelength, so small energy.
परफेक्ट. सो द स्प्लिटिंग इज स्मॉल. वायलेट का वेवलेंथ कम है, एनर्जी ज्यादा है, यानी उधर स्प्लिटिंग ज्यादा हुआ रहेगा. मतलब अगर हम विबग्योर के ऑर्डर से देखें तो एज पर विबग्योर ऑर्डर वी नो दैट वायलेट इज ऑफ low wavelength, so it will correspond to high energy, and red corresponds to a high wavelength, so it will have a lower energy. तो जितना वेवलेंथ कम उतना एनर्जी ज्यादा, और जितना एनर्जी ज्यादा उतना स्प्लिटिंग ज्यादा होगा. स्प्लिटिंग ज्यादा होगा तो लिगेंड विल बी अ strong filled ligand, right? So the strength of the ligand will be in the order L1, L2 and L3. समझ में आ गया ये? Yes, sir. ठीक है, ध्यान से सुनना. If the complexes are absorbing the colors corresponding to the lower wavelength, it corresponds to higher energy, and higher energy मतलब उसका जो डेल्टा नॉट है, अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, वो ज्यादा रहेगा. और ज्यादा कब होगा? जब लिगेंड स्ट्रांग होता है. इसीलिए L1 will be confirmed and justified to be a strong filled ligand, followed by L2 and then L3. अच्छा, ये तो हो गया light which is absorbed. अब color of the complex pertaining to this ligand will be what? Color observed क्या होगा? Violet absorb किया, कलर क्या होगा? Yellow. 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 येलो. तो ये भी पूछा जाता है. ठीक है, फिर ब्लू के लिए Orange. this will be orange, and red के लिए Green. 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 समझा? अब देखो इतने छोटे कॉन्सेप्ट में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं. क्वेश्चन बोलते हैं कि अ कॉम्प्लेक्स इज observed to be yellow in color. A complex is observed to be yellow in color. Then what will be the wavelength of the light which will be absorbed? येलो कलर का कॉम्प्लेक्स है तो वेवलेंथ क्या एब्सॉर्ब हुआ होगा? ये कॉम्प्लेक्स येलो कलर्ड है तो वेवलेंथ क्या एब्सॉर्ब हुआ होगा? Violet. वायलेट. ठीक है, अब दो कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं. मान लो क्रोमियम के दो कॉम्प्लेक्सेस हैं. वन इज NH3 6 with a 3+ versus क्रोमियम का एक्वा कॉम्प्लेक्स H2O 6 with a 3+. ठीक है, यहाँ पे हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स. दिस इज कोबाल्ट का एमाइन वाला कॉम्प्लेक्स जो येलो कलर्ड है. एंड व्हाट इज कोबाल्ट +2 आयन कलर्ड कलर? Blue. मन को पिंक. मन को पिंक. व्हाट वाज दैट न्यूमोनिक रिलेटेड विथ? कोबाल्ट 2+ इज पिंक एंड कोबाल्ट 3+ का कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्लू कलर्ड रहता है. वी कोकू द आयन इज ब्लू. तो 3+ ब्लू है, 2+ पिंक है. तो यहाँ पर अगर मैं इसको कंपेयर करूं विद द कोबाल्ट का वाटर कॉम्प्लेक्स इन द 3+, then which will have a higher splitting? NH3. NH3. और स्प्लिटिंग हायर होगा तो डेल्टा नॉट इसका हायर होगा. तो इसके लिए जो वेवलेंथ एब्सॉर्ब्ड होगा दैट विल बी Low. लो. और इस कॉम्प्लेक्स के लिए स्प्लिटिंग कम तो जो वेवलेंथ एब्सॉर्ब होगा दैट विल बी High. High. हाई. अब एब्सॉर्ब्ड वेवलेंथ की बात की तो ये कंपैरिजन होगा. लेकिन अगर वेवलेंथ जो रिलीज करता है व्हाइल कमिंग डाउन डी एक्साइटेशन वो इसका हाई हो जाएगा. कॉम्प्लीमेंट्री ना? आ रहा है समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे चार
चीजें पूछे जा सकते हैं फॉर द कंपैरिजन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर है? तो वैसे ही अगर क्रोमियम का NH363+ होगा तो इसका स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, और H2O63+ होगा तो इसका स्प्लिटिंग कम होगा। ठीक है, सो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट, इट इज इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। 3 ligands are given with their absorbed wavelengths violet, blue and red. The strength of the ligands will be L1, L2, L3. इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स विल बी इन द ऑर्डर ऑफ विबग्योर ओनली। yes or no? Yes, sir. तो बस, अगर आपको एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ दिया है तो विबग्योर के ऑर्डर में अरेंज करो। अगर कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस दिया है तो फिर विबग्योर का ऑर्डर उल्टा करो। Reverse. उल्टा करो। दैट्स द ट्रिक। खत्म। Am I clear on this? Absolute clearly. You'll Yes, sir. find the questions related with this in the JEE main examination 2019 और 2020 में बहुत सारे ऐसे questions पूछे गए हैं। I hope this is clear. Next, it is important to note that in the absence of ligand, crystal field splitting does not occur and hence the substance is colorless. तो लिगेंड जो है वो स्प्लिटिंग करेगा, और लिगेंड नहीं होगा तो स्प्लिटिंग नहीं होगा, स्प्लिटिंग नहीं होगा तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो देयर वोंट बी एनी कलर एंड द सब्सटेंस देयरफॉर विल बी कलरलेस। फॉर एग्जांपल, removal of water from titanium का hydrated complex on heating renders it colorless। मतलब टिटेनियम 3+ अगर सिर्फ क्लोराइड के साथ हो तो वो कलरलेस होगा, लेकिन जैसे ही वो aqueous फॉर्म में होगा तो इट विल हैव सम कलर। Similarly, CuSO4 anhydrous without water is white. Anhydrous CuSO4 is white, but it's well known fact that CuSO4.5H2O is blue in color and it is famously called blue vitriol. In fact, how do we write the formula of CuSO4.5H2O? CuH2O4SO4.H2O. It's an aqua complex of copper with CuH2O4 2+, SO4 2 negative, and dot 1 H2O outside the coordination sphere. Clear? Then, next point, the influence of the ligand on the color of a complex may be illustrated by considering the nickel hydrated complex, which is formed when nickel 2 chloride is dissolved in water. So nickel का hydrated complex is green. Veiny is green. Veiny is green मतलब nickel वहां पर example था which was green colored. Now when we add 1 mole of a bidentate ethylene diamine, there is a substitution of the aqua ligands by the ethylene diamine. Now tell me, for every En, how many H2O will be kicked out? 2. 2, because ये bidentate है, इसलिए अब नया कॉम्प्लेक्स बनेगा NiH2O4 and 1 En, and this color is now for the complex found to be pale blue. तो En ने एक्वा कॉम्प्लेक्स को चेंज करके उसके कलर को भी चेंज किया, तो देयर इज डेफिनेटली इन्फ्लुएंस ऑफ द लिगेंड ऑन द कलर। सिमिलरली वन मोर En अगर हम यहाँ पर एड अप करें तो हमारे पास H2O ट्वाइस En ट्वाइस हो जाएगा, विच इज नाउ ब्लू और पर्पल कलर्ड। वन मोर En डाले तो सारे एक्वा रिप्लेस हो जाएंगे En से, गिविंग यू NiEn थ्राइस 2+, which is violet colored। समझा? Yes, sir. तो इससे ये भी समझता है कि वायलेट कलर्ड है मतलब लोअर वेवलेंथ, लो वेवलेंथ मतलब हाई एनर्जी मतलब हाई डेल्टा नॉट, और ग्रीन कलर मतलब लो एनर्जी तो लो डेल्टा नॉट। करेक्ट नो?
So that justifies that water is a weak field ligand and the delta naught का splitting in that case is smaller. En is a strong field ligand, the delta naught splitting is higher. वो कलर से भी तो कंफर्म हो रहा है. That is the reason here it is stated that the color in the coordination compounds can be readily explained in terms of the crystal field theory, CFT. ठीक है. अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि फॉर 1 mole of the nickel aqua complex to convert it into the NiEn thrice, how many moles of En will be required? 3 moles. एंड ये दो कलर्स याद रखो. Ni2+ का तो कलर मैंने बोला है, एक्वा है, मतलब वो ग्रीन कलर्ड है. और जब En थ्राइस में हो जाएगा तो इट इज वायलेट कलर्ड. और इसके रिलेटेड फिर डेल्टा नॉट के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. ठीक है. जितना इंफॉर्मेशन बता रहा हूं प्लीज कीप राइटिंग इन योर नोट्स. दैट विल हेल्प यू व्हेन यू रिवाइज. नेक्स्ट, color of some gemstones. Now we have observed that the gemstones are having variable colors. जैसे रूबी रेड होता है and the composition is of aluminium and oxide ions in it. But अगर हम देखें तो aluminium के ions की वजह से कलर का होना is not justified because यहाँ पर कोई तरह का splitting हम नहीं ऑब्जर्व करते हैं. It's a p block metal. लेकिन रूबी में अपार्ट फ्रॉम अल्यूमिनियम आयंस देयर आर 0.5 to 1% of chromium ions. And when I say chromium 3+ with a configuration of 3d3, there is a splitting in the octahedral arrangement which will now have the dd transition possible. And because of this dd transition, the gemstone ruby is observed to be colored. तो रूबी का रेड कलर किसकी वजह से है? Cr3+. Chromium 3+ ions. It is not due to the aluminium ions. And these are the ions which are distributed randomly in positions normally occupied by aluminium 3+. तो एक तरह का डोपिंग होता है यहाँ पर जिसमें aluminium ions को किक आउट किया और chromium ions उनकी जगह ले लिया to the extent of only 1%. But still that 1% of chromium 3+ ions will be responsible for a dd transition, and that's why the ruby or gemstone is colored. Emerald जो green colored होता है उसमें chromium 3+ ions occupy octahedral sites in the mineral beryl. तो emerald का main composition होता है beryl जिसमें beryllium, aluminium, silicon और ऑक्सीजन होता है. ठीक है. और ये बेराइल का फॉर्मूला ना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते भी है. Be3Al2Si6O18. इसको याद रखो विद द ऑर्डर बासो. बेरिलियम, अल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन. और रेशियो है 3:2:6:18. बासो, बेराइल इज बासो विद द कोएफिशिएंट्स 3:2 and 3 2s are 6 and 6 3s are 18. 3 2 3 2s are 6 and then again 6 3s are करो तो 18. हो गया नंबर याद. ठीक है. तो यहाँ पर जेईई मेन में लास्ट इनफैक्ट 2020 में इसी के रिलेटेड एक स्टेटमेंट आया था जहां पर एमरल्ड की जगह ये सेम स्टेटमेंट रूबी के लिए दिया था और बोला विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो ये जो स्टेटमेंट है वो एमरल्ड के लिए है क्योंकि Cr3+ ऑक्यूपाइंग ऑक्टाहेड्रल साइट्स इन द मिनरल बेराइल corresponds to emerald not ruby. रूबी में क्रोमियम 3+ अल्यूमिनियम आयंस की जगह पर ऑक्यूपाइड होता है. समझा? Yes. Yes, sir. ठीक है. तो ये छोटा छोटा पॉइंट्स ऐसा लगता है कि इसमें से ज्यादा कुछ पूछ नहीं सकते हैं बट एज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट दे कैन बी आस्क्ड. तो इसको स्किप नहीं करना है. इनफैक्ट हम बड़ी बड़ी चीजें करके जाते हैं, छोटी छोटी चीजों को स्किप कर देते हैं और जब वो स्मॉलर
कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड या फैक्चुअल स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो फिर उसमें मिस्टेक होने के चांसेस सबसे हाईएस्ट है. इनफैक्ट द मार्क्स आर जनरली लॉस्ट इन द क्वेश्चंस व्हिच आर सिंपलर. याद रखना. Then limitations of CFT. Now CFT to a large extent was highly successful in explaining many of the concepts जो VBT explain नहीं कर पाया था. तो VBT तो पूरा assumption के basis पे था, लेकिन CFT ने काफी बड़े extent तक सब कुछ explain किया था. But still there were some problems associated with CFT. Let's understand that. The CFT model is successful in explaining the formation, structures, color, and magnetic properties of coordination compounds to a large extent. However, from the assumption that ligands are point charges, it follows that anionic ligand should exert the greatest splitting effect. तो जब हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखा तो मेटल का लिगेंड ऑन द एक्सिस और बिटवीन द एक्सिस. जब लिगेंड अप्रोच करता है तो हमने बोला कि ये लिगेंड इस ऑर्बिटल्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है. अब लिगेंड दो टाइप के होते हैं. जनरली इट कैन बी अनायोनिक और न्यूट्रल. पॉजिटिव बहुत रेयर केस होता है तो वो नहीं कंसिडर करता. तो अनायोनिक बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज वर्सेस न्यूट्रल, which will have greater influence on the d orbital metal? Negative because it is considered to be electron richer. तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो रिपल्शंस वुड बी मोर, एंड रिपल्शन की वजह से ही तो एनर्जी रेज हुआ है. तो इट शुड बी फॉलोड दैट अनआयोनिक लिगेंड एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट स्प्लिटिंग इफेक्ट. लेकिन जब हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज SCS को देखते हैं तो उसमें CO has the highest splitting effect, followed by cyanide, EN, NH3, EDTA4 negative and so on. और आगे देखोगे तो most of the anionic ligands at the low end of the spectrochemical series दिखेगा. तो CFT ये जस्टिफाई नहीं कर पाता है कि न्यूट्रल लिगेंड के लिए स्प्लिटिंग ज्यादा क्यों हुआ और अनआयोनिक लिगेंड्स के लिए स्प्लिटिंग कम क्यों हो रहा है. Further, it does not take into account the covalent character of bonding between the ligand and the central atom. क्योंकि CFT सिंपली बोलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, कोई भी तरह का ओवरलैप नहीं है. यहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग को वो एक्सप्लेन नहीं करता. बट बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस में देयर इज अ सिग्मा बॉन्ड व्हिच इज फाउंड बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड. तो ये वाला पॉइंट भी एक्सप्लेन या जस्टिफाई नहीं कर पाया. तो these are some of the weaknesses, drawbacks of CFT which are explained by ligand field theory and molecular orbital theory which are beyond the scope of the present study. तो ये भी एक्सप्लेन हो सकता है और भी थियोरीज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए है. वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स VBT, देन CFT. CFT के भी जो फेलियर्स है वो LFT या MOT क्लियर करता है. अब सिलेबस में LFT और MOT का जो फंडा है वो डिटेल में नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं उसमें मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूं, जो सिलेबस में नहीं है. फिर भी फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उसके साथ साथ मैं ये भी जस्टिफाई करूंगा why CO is observed at the start of the spectrochemical series and why it is the strongest field ligand. SFL क्यों है वो हम जस्टिफाई करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में. Now let's move on to the bonding in metal carbonyls. So why carbonyl is a very strong field ligand, इस टॉपिक में I will explain. And to start with, metal carbonyl complexes are those in which the metal will be surrounded by only carbonyl ligands. और ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड होता है, they are called homoleptic. Homoleptic. So these are all homoleptic metal carbonyls. अब मेटल और कार्बोनाइल के बीच में जब बॉन्ड होगा तो there is actually a bond between a metal and a carbon like this. अब जब भी मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है
we have a special name given to this type of compounds. Organometallic. Excellent. Organometallic. And one of the example which we have already discussed was what? Ferrocene. Yes, ferrocene. नहीं, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोल रहा हूँ, कहां पर हमने ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया था पहले? If you recollect, what is RMGX? Name. बस नाम था इसका. Grignard's reagent. Grignard's reagent. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्काइल हैलाइड और Mg के एडिशन से बनता है. इसमें देयर इज अ कार्बन बॉन्डेड टू अ मेटल. सो कोई भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्पीशीज में अगर कार्बन मेटल का बॉन्ड होता है तो वी कॉल इट एज ऑर्गेनो फॉर कार्बन एंड मेटेलिक फॉर द मेटल. सो दिस इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. तो पॉइंट नंबर 1, MCO यानी होमोलेप्टिक मेटल कार्बोनाइल्स आर, डायग्राम के वहीं पे लिख लो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. लिखा होगा पैराग्राफ में बट लिख लो वापस. दे आर ऑल ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल. क्लियर? ठीक है. अब there are some of the examples of the carbonyl complexes given. The first we have already justified by VBT that NiCO4, because CO is a very strong field ligand, सारे इलेक्ट्रॉन्स पैर अप होते हैं और 4s2 का इलेक्ट्रॉन जंप करता है, making the sp3 hybrid orbitals available for bonding, and this was observed to be sp3 tetrahedral. ठीक है, तो NiCO4 हाइब्रिडाइजेशन sp3 है and it is tetrahedral. फिर FeCO5 with 5 carbonyl, it will be trigonal bipyramid. And can you guess what would be the hybridization here? sp3d. उल्टा. Yes. Now जैसे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में sp3d2 और d2 sp3 होता है, वैसे यहाँ पर भी sp3d और dsp3 होगा. अब कार्बोनाइल है तो इनर बनेगा क्या आउटर बनेगा? Inner. इनर. अब देखो, इसको फाइंड आउट करने का भी सिंपल ट्रिक है. Fe का न्यूट्रल स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2. कार्बोनाइल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द D विल गेट पेयर्ड अप. एंड एक और चीज होगा क्या? 4s will jump to 3d. बस, तो मेकिंग द D अवेलेबल फॉर द बॉन्डिंग. उसके बाद 4s लेगा और 4p का 3 लेगा. हो गया DSPPP. क्लियर? लेकिन कार्बोनाइल है तो सीधा सीधा समझने का, DsP3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा. लिख लो. नेक्स्ट इज अ डाइमर ऑफ COCO4. नाउ इस केस में द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विल बी ऑक्टा कार्बोनाइल डाई कोबाल्ट. ऑक्टा कार्बोनाइल डाई कोबाल्ट 0. एंड लुक एट द स्ट्रक्चर. नाउ एनसीईआरटी में ये मिस्टेक है कि CO के बीच में जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है वो नहीं है. प्लीज कैंसिल ऑफ. ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है लेकिन एनसीईआरटी का मिस्टेक है ये. There is no bond which is present over here. Cancel. Okay, now looking at the structure, tell me each cobalt is bonded to how many carbonyl groups? 5. 5. So what will be the arrangement for the cobalt? Trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramid, and it will be DsP3. ये तो समझ में आ गया. अब इस कॉम्प्लेक्स के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन आ चुका है. There are dash CO-CO bonds, cobalt-cobalt bonds, and dash number of carbonyl are present on each cobalt. Fill in the blanks. 0.
There is no cobalt-cobalt bond. And each cobalt pair there are 5. 5 carbonyl. ठीक है, और इसका जो मोनोमर है that could be written as CO, CO4, जो डाइमर की तरह एग्जिस्ट करेगा CO2, CO8 के फॉर्म में. क्लियर? Yes, sir. The chromium CO6 will be octahedral. And what will be the hybridization? बोलो. DsP3D. DsP3D. कैसा? देखो, chromium is 3d5 4s1. D2sp. D2sp3 करेक्ट है. 3d5 4s1 है. अब जब कार्बोनाइल आएगा तो D5 का इलेक्ट्रॉन्स पैरअप हो जाएगा, और पैरअप होने के साथ साथ वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल रिमेन अनपेयर्ड, और ये 4s का एक इलेक्ट्रॉन अब जंप कर जाएगा ना इधर. तो ये देखो D2 अवेलेबल हो गया कि नहीं. Yes, sir. So this is D2sp3. हमेशा याद रखो, when it is octahedral it is D2sp3 for a carbonyl complex, and when it is trigonal bipyramid it is DsP3. खाली NiCO4 के केस में स्क्वायर प्लेनार नहीं होता है, क्योंकि उसमें 4s का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है और D ब्लॉक हो जाता है. तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड दैट. डिफिकल्ट नहीं है. नेक्स्ट, Mn2CO10 डेका कार्बोनाइल डाईमैंगनीज 0, जिसका मोनोमर कुड बी रिटन एज MnCO5. ठीक है. Now in this, if you look at Mn, each Mn is bonded with 5 carbonyl, and there is also a Mn-Mn bond. मतलब what will be the hybridization of Mn over here? छह बॉन्ड्स बना रहा है. What is the arrangement? 1 2 3 4 5 6. D2sp3. Of course. इतना सोचते क्यों? It is straightforward. 6 होगा तो D2sp3 octahedral होगा. नेक्स्ट, अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन, कितने M मेटल मेटल बॉन्ड है इसमें? 1. ऑब्वियसली 1 ही होगा, लेकिन है कि नहीं है दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड देयर आर डैश कार्बोनाइल ऑन ईच मैंगनीज. 5. क्लियर? D2sp3 octahedral, 1 Mn bond, Mn bond, and 5 carbonyl on each manganese. अब क्वेश्चन में क्या करते हैं वो लोग, ये 4 ऑप्शंस देते हैं, और चौथे ऑप्शन में ना दे डोंट गिव यू द डाइमर, दे गिव यू द मोनोमर, एंड आस्क कि व्हिच ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स हैव अ मेटल मेटल बॉन्ड. They will give you the monomer for this and ask which have a metal metal bond. तो सिर्फ एक में ही मेटल मेटल बॉन्ड है अपने सिलेबस के हिसाब से, बाकी और भी कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस है, बट फॉर आवर सिलेबस इट इज Mn2CO10 में Mn-Mn बॉन्ड है. मतलब याद रखना दैट दिस कॉम्प्लेक्स हैज अ मेटल टू मेटल बॉन्ड. ठीक है, ये जस्ट ऑब्जर्वेशन है फ्रॉम व्हाट इज गिवन. क्लियर? Yes, sir. ओके. So isn't it MnCO5 minus? या इट इज. मैंने चार्ज नहीं लिखा है. और दूसरा पॉइंट, कार्बोनाइल CO is considered to be a non-classical ligand. Non-classical ligand, या फिर इसको पाई एसिड लिगेंड बोलते हैं, या फिर इसको पाई एक्सेप्टर लिगेंड बोलते हैं. अब ये तीनों नाम मैं जस्टिफाई करूंगा व्हेन आई मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल कार्बोनाइल्स.
But before I start with the structure, the two things which you are supposed to remember over here is metal carbonyls are organometallic complexes and the CO is a non-classical pi acid or a pi acceptor ligand. Non-classical मतलब जैसा हम normal ligands में bonding देखते हैं वैसा carbonyl के अंदर नहीं होता है. There is something special in it. अब क्या special है, क्यों special है, that we are going to understand now. Pay attention. Next 5 minutes is very important. So how is it minus? See, men के केस में when we talk about the monomer, तो Mn का configuration क्या होता है? S2D5. 3D5 and 4s2. ठीक है, ये नेगेटिव मतलब there is one extra electron और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करता है 3d5 के साथ जाकर पैर हो जाएगा और 4s स्विच करेगा. मतलब फाइनली अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से दिखेगा? 1 2 3 4 5 6 फॉर द Mn माइनस एंड 4s का जंप. अब देखो यहाँ D अवेलेबल हो गया एंड 4s और 4p. तो ये DsP3 हाइब्रिडाइजेशन कंफर्म हो जाएगा. क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पे MN बॉन्ड हम जब तोड़ेंगे ना तो one of the electron shared electron will go over here and one of the shared electron will go over here. तो इस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम जब मोनोमर लेते हैं ना we take MnCO5 with one negative of this electron. ये वाले के लिए ले रहे हैं हम, समझा? इसलिए ये MN बॉन्ड का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. और जब शेयर हो जाएगा तो this share electrons will finally share and that's why this Mn will have a zero oxidation number once it forms a dimer. समझा? जैसे हमने NO2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखा था, लेकिन जब ये डाइमराइज हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाता है ना, ऐसा. Yes, sir. और अब कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं ऑब्जर्व होता है इन द डाइमर ऑफ NO2. बस एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है. MnCO5 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का 1 नेगेटिव चार्ज है, डाइमर बना देगा तो चार्ज गायब हो जाएगा. समझा? Yes, sir. Okay. Now pay attention. I am explaining the bonding in metal carbonyls. ये इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन जो डायग्राम उन्होंने दिया है वो इस कॉन्सेप्ट के बिना नहीं समझेगा. So first of all, the bonding in metal carbonyl is explained by, let me introduce once again, MOT, molecular orbital theory. अब MOT में if I consider the hetero diatomic molecule, हमने MOT को सिर्फ होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई किया है. O2, N2, F2, C2, B2 and so on, right? Yes, sir. बट अब हेट्रो के लिए जब अप्लाई करना है ना तो थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है. ठीक है, बट शॉर्टकट ट्रिक ये है कि जो उसका सेंट्रल एटम है ना उसके लिए जो सीक्वेंस फॉलो होता था वही सीक्वेंस मॉट का यहां पर भी फॉलो होगा. मतलब इन CO कार्बोनाइल विच इज द सेंट्रल एटम? Oxygen. अच्छा, व्हाट इज द फंडा ऑफ सेंट्रल एटम? टेल मी. जब हम NO2 नेगेटिव लेते हैं हमने सेंट्रल एटम किसको लिया था? नाइट्रोजन. ClO4 नेगेटिव में किसको लिया था? क्लोरीन. SO4 2 माइनस में किसको लिया था? सल्फर. So the central atom is always which is less electronegative. ये ल्यूइस का स्ट्रक्चर बनाने का एक रूल है. Central atom is one which is less electronegative. So in CO, in the oxide, in any oxide of any element, oxide will always be the bonded atom, not the central atom. Understood? Yes, sir. कार्बोनेट में ले लो, कार्बन सेंट्रल एटम है, राइट?
So Yes, sir. once again, which is the central atom here? Carbon. Carbon. Now carbon in the form of C2, when it exists in MOT, what was the sequence? Trick क्या था sequence का for writing for C2? कुछ याद है? जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन का सीक्वेंस था उसमें देयर वाज समथिंग व्हिच वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स. Pi and pi star together. किसमें टुगेदर होता है? Oxygen and and fluorine. fluorine. बस ऑक्सीजन फ्लोरीन में पाई पाई स्टार पाई स्टार पाई स्टार साथ में होता है. तो कार्बन और बाकी सारे में पाई स्टार साथ में नहीं होता है. अब इतना याद रखा तो सीक्वेंस देखो सिंपल है. सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s. यहां तक तो फर्क नहीं आता है. अब आगे पाई स्टार साथ में नहीं है, मतलब फर्स्ट वी विल हैव पाई 2px इक्वल टू पाई 2py. देन आई विल हैव सिग्मा 2pz. फिर आएगा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग, देन सिग्मा स्टार 2pz. करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Next, tell me what is the electron sum for the carbonyl molecule? 14. 6 plus 8. अब ये 14 इलेक्ट्रॉन को हमें फिल अप करना है. So it will be entered as 2, 4, 6, 8. Then equal energy में 9, 10, 11, 12. मतलब 2 each आ जाएगा. And then 13, 14. यहाँ पर 2. And this will get filled up. Correct? Yes, sir. अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पहले बताता हूँ. जब हम कोई एटम की बात करते हैं नाइट्रोजन, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन वी राइट? बच्चे वाला कॉन्फ़िगरेशन 2,5. 2,5. Now which electrons we consider in bonding? Valence. वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. मतलब ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है ये बॉन्डिंग में कभी पार्टिसिपेट नहीं करते. नहीं करते. यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है of the outer shell, they are the ones which have the participation in bonding. वैसे ही जब एटम मॉलिक्यूल में बदल जाता है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का भी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है that will be the orbital which participates in bonding. समझा? Yes, sir. Tell me which is the outermost MO in CO? Sigma 2pz. सिग्मा 2pz2. आउटरमोस्ट मतलब सबसे आखिरी वाला. अब इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी में होमो बोलते हैं. हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. मतलब जो सबसे आखिरी वाला फिल्ड ऑर्बिटल होता है उसको होमो बोलते हैं. और उसके बाद वाले सारे खाली ऑर्बिटल्स होते हैं. तो खाली में भी जो वेकेंट में सबसे लोवेस्ट एनर्जी होता है उसको बोलते हैं लूमो. लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. समझा? Yes, sir. The filled one at the highest energy is HOMO and the vacant ones at the lowest energy is LUMO. Now this HOMO-LUMO concept is very important because HOMO में जो electrons होते हैं they will be ones which will have the tendency to donate. Filled वाले क्या करेंगे? दान करेंगे. खाली वाले क्या करेंगे? Accept. एक्सेप्ट करेंगे, गेन करेंगे. बस. तो अब कार्बोनाइल एक नॉन क्लासिकल लिगेंड है क्योंकि वो सिग्मा के थ्रू डोनेट करता है और पाई के थ्रू एट द सेम टाइम एक्सेप्ट भी करता है. मतलब व्हेन वी हैव द कार्बोनाइल का लिगेंड और ये लोन पेयर जो हम बताते हैं वो एक्चुअली कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है? ये वाला इलेक्ट्रॉन Sigma 2pz.
तो कैन आई से दिस इज माई सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, और उसमें पेड इलेक्ट्रॉन है, राइट? यहाँ पर लिख लेता हूँ सिग्मा 2pz, ठीक है। अब उसके अलावा मेरे पास पाई स्टार के भी ऑर्बिटल है जो खाली है और जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब पाई स्टार वाले ऑर्बिटल थोड़े डिविएटेड रहते हैं बिकॉज एंटी बॉन्डिंग है ना। तो अगर डायग्राम याद रहेगा तो हम कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं इसको, बिटवीन द एक्सिस टाइप। ये क्या है मेरे पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, टू बी स्पेसिफिक 2px या 2py, ठीक है। अब आता है अपना मेटल जिसके साथ कार्बोनाइल बॉन्ड बनाने वाला है। So now this metal also have two type of orbitals. One of the orbital is along the axis and बाकी orbital जो होते हैं वो between the axis होते हैं। तो ये वाला कौन सा है? EG. EG वाला। और ये कौन से है? T2G. T2G. T2G। अब just look at the orientation of the orbitals. कार्बन का जो सिग्मा 2pz है और M यानी मेटल का Eg है वो along the axis है। So what will be type of the bond which will be formed here? Sigma. सिग्मा। तो यहाँ पर कार्बन और मेटल के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है which is directed from carbon to the metal। और मेटल के अंदर जो फील्ड ऑर्बिटल्स रहते हैं dxy, yz या zx, वो जो फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो इसके साथ पैरेलली ओवरलैप करते हैं because if you look at the orientation they are both facing parallel to each other। और पैरेलल में जब यहाँ से डोनेशन होगा तो इट विल फॉर्म which bond? Pi. पाई बॉन्ड। तो ये लिगेंड में क्या हो रहा है, सिग्मा के साथ साथ देयर इज आल्सो द फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड एंड दिस बॉन्डिंग हैपेंस साइमल्टेनियसली। और ये जो पाई बॉन्ड बनता है उसको हम बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं, करेक्ट? ठीक है। अब लुक एट द डायग्राम व्हिच इज गिवन ओवर देयर। सबसे पहले जब सिग्मा और पाई बॉन्ड साथ में बनता है दैट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन द कॉम्प्लेक्सेस इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग। और जिसमें भी सिनर्जिक बॉन्डिंग होता है वैसे लिगेंड्स आर क्लासिफाइड एज नॉन क्लासिकल। अब समझा नॉन क्लासिकल का मतलब? Yes, sir. दूसरा नाम क्या दिया था? Pi acid. पाई एसिड या Pi acceptor. इज द नेम जस्टिफाइड नाउ? ये कार्बन का ऑर्बिटल है जो पाई को क्या कर रहा है? Accept. बस, hence the name पाई एक्सेप्टर। और एसिड क्योंकि जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स वो एसिड्स होते हैं, तो इसको पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड बोलते हैं। इसके अलावा वी हैव द एग्जांपल्स ऑफ द पाई एक्सेप्टर लिगेंड COCN- PR3 यानी कोई भी अल्काइल ले लो, C2H4 ethene, these are all pi acceptor ligands। तो नाउ जिसमें भी सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है वो वाला कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है एंड द सिनर्जिक बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द कार्बोनाइल लिगेंड्स। दैट इज व्हाई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में CO पहले आया, फिर CN- आया और फिर बाकी का लिगेंड्स का ऑर्डर आया। Why the CO has the highest strength is justified by synergic bonding, and this is justified in turn by MOT, molecular orbital theory। Clear? Yes or no? Hello? Yes.
Any doubt in this? है क्या कोई डाउट? No, sir. अच्छा, अब जो पॉइंट समराइज कर रहा हूं बस वो ध्यान रखना है. यहाँ पर मेटल एंड कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम व्हाट टू व्हाट? Carbonyl to metal. Carbonyl to metal. So we say that the sigma bond is formed from the donation of the lone pair of electrons from carbon to the vacant d orbital of metal, and the pi bond is formed by donation of the filled d orbital to the vacant anti-bonding pi star orbital of carbonyl. समझा मैंने क्या बोला? Yes. बस ये 2 पॉइंट्स आपको पैराग्राफ में दिए हुए हैं, वहां पर वो समझने के लिए इतना सारा डिटेल्स मैंने बताया. ठीक है, अब थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल्स जो जेई के लिए इंपॉर्टेंट है. व्हेन देयर इज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड कार्बन, तो जो कार्बोनाइल का बॉन्डिंग है, हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देम, द मोमेंट देयर इज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड कार्बन, this particular bond will go on becoming Bubble. pardon, Longer. मतलब the bond will go on becoming weaker or stronger? Weaker. वीकर. बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, यानी इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो घटते जाएगा. एंड जितना सिनर्जिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा एम और सी के बीच में, उतना सी और ओ का बॉन्डिंग Weak होगा. वीक होगा. नाउ कार्बोनाइल ही ऐसे कॉम्प्लेक्सेस है जिसमें मेटल के ऊपर प्लस चार्ज के अलावा 0 हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है. तो नेगेटिव हमने देखा ना. तो अगर मेरे पास ये मेटल के ऊपर 0 चार्ज है, प्लस चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो मुझे बताओ विच इज इलेक्ट्रॉन रिच आउट ऑफ द 3 केसेस? M minus. M माइनस. और क्योंकि M माइनस इलेक्ट्रॉन रिच है, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा शो करेगा कि कम? ज्यादा. ज़्यादा. ज्यादा. मतलब M और C के बीच में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा व्हेन देयर इज अ M विद अ Negative. Negative charge. नेगेटिव चार्ज, और सबसे वीक बॉन्ड कब बनेगा? जब M with positive. M विद पॉजिटिव. फंडा सिंपल है. अगर अंबानी है तो वो डोनेट कर पाएगा, लेकिन अगर वो इतना रिच नहीं है तो इट विल बी हेजिटेंट टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू कार्बन. सो इफ इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, द MC का बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर. इफ इट इज इलेक्ट्रॉन deficient with a positive charge, the MC का bond will be weaker. Have you understood this? Yes, sir. तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है. MC bond order if the complex is given as TiCO6 2 negative, CrCO6 and MnCO6 with a plus, कहां पर बॉन्ड ऑर्डर MC का स्ट्रॉन्ग होगा? 2 negative. सेम ऑर्डर. अब जब MC का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो CO का बॉन्ड Weak. वीक हो जाएगा. तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO for the same complexes now will get Reversed. reversed. ये 2 क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और वो सिनर्जिक बॉन्डिंग के साथ साथ समझना है. मतलब MC bond would be strongest when metal has a negative, CO bond would be strongest when metal has a positive. That's it.
I hope it is very clear. Understood. Yes, sir. So synergic bonding means the sigma and the pi carb formation between the metal and the ligand happens simultaneously. And synergic bonding creates a very, very stable complex. And that's why carbonyl is the strongest field ligand. And in the presence of that, the complex will have the highest stability. तो ये point important था बस. With this, now the importance and application of coordination compounds. इसको आप go through करोगे तो समझ में आ जाएगा. मैं just आपको important points बताते जाता हूँ. Hardness of water is estimated by simple titration with EDTA. क्योंकि calcium and magnesium ions can form stable complex with EDTA. In fact, when calcium forms a complex with EDTA, what is the formula of the complex? Two minus. हाँ, क्योंकि कैल्शियम का 1 cation can hold 1 EDTA with a 4 negative charge, the complex will have 2 minus. And अगर 1 second. Yes. So calcium forms a complex with EDTA, 1 mole of calcium with 1 EDTA. Then कुछ extraction processes are gold and silver के, which use the cyano as the ligand and form a complexes by which the gold and silver can be extracted. इस extraction process को बोलते हैं hydrometallurgy. Because aqueous solution में इसको extract किया जाता है through the cyano ligands. Hydrometallurgy. And purification of metal can be achieved through formation and decomposition of their coordination compounds. जैसे निकल को प्योर करते हैं via carbonyl complexes. ये metallurgy का part है जो आगे समझेगा. Then chlorophyll is a coordination complex with magnesium. Hemoglobin में iron रहता है. विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है. बस यही सब याद रखना है. Chlorophyll, Mg, hemoglobin, iron, vitamin B12, cobalt. ठीक है. And there are some enzymes like carboxypeptidase A and carbonic anhydrase which are having the zinc as the metal. Zn नहीं दिया है वो लिख लो. Carbonic anhydrase, it is zinc. Wilkinson catalyst already detail में discuss किया है. Then we had talked about Na2H2O3 which was commercially called hypo. So hypo is the name given by the photographers because in earlier times जब black and white photography होता था तो film को develop करने के लिए it was mixed with the hypo solution जिसमें silver एक complex बनाता है thiosulfato ligand के साथ. इसको क्या बोलते हैं? Thiosulfato. And the complex is with coordination number 2 Ag H2O3 twice 3 negative. 3 negative क्यों आता है? Ag के ऊपर चार्ज है +1. H2O3 is what charge? 2 minus. So total होगा 4 minus and that's why it is -3. कई बार इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला भी पूछा जाता है. कोऑर्डिनेशन नंबर या क्या है, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा है, इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं. ठीक है. इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चंस आए भी है जेई में. Then excess of copper and iron are removed by chelating ligands D-penicillamine and des-ferrioxime B via the formation of coordination compounds. Now इस ligands के बारे में अपने पास डिटेल सिलेबस के लिए नहीं है. जस्ट ये याद रखो दो नाम, पेनिसिलअमाइन एंड des-ferrioxime. कॉपर एंड आयन के रिमूवल के लिए यूज करते हैं एंड दीज आर द chelating ligands.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. EDTA हार्डनेस ऑफ वाटर एस्टिमेट करने के अलावा लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में भी यूज होता है. क्या होता है, लेड आयंस EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बना देते हैं एंड दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी वेरी इजीली एज अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स. So that's used in the treatment of lead poisoning. And some coordination compounds of platinum inhibit the growth of tumors, जैसे cisplatin. मैंने already बताया एंटी कैंसर एजेंट है. And what was the formula of this? PtCl2NH3 twice. Cl2NH3, sorry, Cl2NH3 twice. Anti-cancer agent. Clear? Yes, sir. So finally with this, we complete with the coordination compounds chapter. अब इस chapter से the main contents which are generally picked up for the MCQs, सबसे फेवरेट उनका रहा है नॉमेनक्लेचर, जो सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है लेकिन उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. सेकंड कैटेगरी है आइसोमेरिज्म का. तो मैंने काफी डिटेल में और जनरलाइज करके बताया है. If you just go through the generalization of the complexes and how to identify the GI, OI, this part is very simple. थर्ड VBT, जिसके कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स से हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए ये इंपॉर्टेंट था. फिर इसके ड्रॉबैक्स के बाद आया CFT, which I think is a very simple part if you have understood. एंड CFT दो पार्ट्स में था, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के लिए. और खाली रिवर्स पार्ट याद रखना है और स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट इज टू बी अंडरस्टूड. देन छोटा मोटा पार्ट था. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट था मेटल कार्बोनाइल, जिससे जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब कुछ मैंने कवर किया है. एंड लास्ट एप्लीकेशंस, दो इट्स अ सिंपल पार्ट बट इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो डू नॉट स्किप दिस. प्लीज गो थ्रू ऑल द एप्लीकेशंस प्रॉपरली. क्लियर? Yes, sir. Any other doubt apart from whatever I explained today? कुछ भी पार्ट नहीं समझा है? I hope everything is clear whatever I have explained. Okay. अच्छा, आज के टेस्ट के लिए मैंने जैसे बताया आइसोमेरिज्म का पार्ट VBT एंड CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल इज इंक्लूडेड. आगे का पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड, वो हम डायरेक्टली कॉम्बो में लेंगे. So nomenclature and all is also not there. नो नो नो, दैट ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इन द लास्ट पार्ट, और वो बहुत सिंपल सेक्शन था इसलिए मैंने वापस इंक्लूड नहीं किया. सो आई हैव कंसंट्रेटेड मोर ऑन आइसोमेरिज्म, VBT एंड द CFT वाला पार्ट. ओके. Yes, sir. Yes, sir.